Hello. Hi, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. Sure. So let's start. Okay. Let me know once the screen is visible. Sure. Okay. Okay. So, Sanket, what is your email ID? Sanket Patil. Is it this one? Yes, sir. So please accept from the email also, क्योंकि आपके लिए मुझे admit करना पड़ रहा है. So possibly you are not joining from the same account or you're coming from not sure. ठीक है. So you are not joining from the same account, I think. So if suppose you are joining from different account, update it so that I can remove the right existing one. ठीक है. Sure. Sharmila, what is your email ID? Sir, I'm doing the text. Sure. Add me. Is this one SHARMILARL556@gmail.com? Yes, sir. You must have received the drive access as well as the link. You have not accepted. I've not received any link and all. I've checked my calendar and drive link as well. There was no any link. ऐसा नहीं हो सकता है. If suppose the mail has been sent, अगर मेल आईडी गलत होगी तो मुझे मेल रिटर्न आया होगा. मेल रिटर्न नहीं आया है. So you have not. I can see where it is. This one. Mail ID is correct, sir, but The mail address is correct. calendar medicine. Drive access is also correct. You can see SHARMILARL556@gmail. Yes. Check your mail ID. Suppose you don't have it, then let me know. Okay. Sure. Chalo. Okay. So let's start with our today's session. Let's go with the yesterday's drive. Okay. So yesterday we started with our, loss functions. Correct. So we have started with our classification loss function. So first was the binary cross entropy, binary cross and entropy. All three words are different. Binary, the name only suggests it can be used for two types of, when suppose we are having two classes, basically it could be cats, dog, fraudulent, genuine, this kinds of classes. ठीक है. तो जैसे entropy is what, whenever we are having a high randomness, that is what the entropy. ठीक है. So entropy usually ranges from 0 to 1. The 1 is nothing but the highest randomness and 0 is nothing but no randomness. We are sure that something will happen. Again, there's a 9 yes and 1 no. That is what the uncertainty is. यानी 90% मैं sure हूँ, but 10% unsure. Suppose I'm saying 10 yes and 0 no, that is I'm certain for something would be happening. और उसके बाद we were having 5 yes and 5 no. That means the highest level of uncertainty, 50% of chance anything could happen. फिर उसका एक फॉर्मूला था, that is what minus y actual log of y hat. Y hat is nothing but y predicted minus 1 minus y actual log of minus 1 minus y hat था. ठीक है. So this formula can be divided into the two parts. First is for class 0 and class 1 and second part is for what? Class 0. Basically दोनों की probability match up होके equals to 1 बनता है. If suppose any of the class is 0, then automatically it is associated with some different class. करेक्ट. अब हमने देखा था कि बाइनरी लॉस फंक्शन अगर मुझे यूज करना है तो ऑब्वियसली कि मैं मेरा लास्ट लेयर में सिग्मॉइड ही यूज कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि सिग्मॉइड will be giving output in between 0 to 1 and that is for basically only for two classes, not more than that. But in the real life scenarios, we would be dealing with multiple classes. So it could be n numbers of classes. It could be ranging in thousands also. Okay. So in case of multi-class classification problem, we are using categorical cross entropy as the loss function and activation function is what? Softmax. ये हमको भूलना नहीं. ठीक है. So let's consider we are having the category like approve, decline and invite. This is what the categories we have it. या फिर cat, dog, lion and tiger.
अगर मैं बाइनरी सॉल्व कर रहा तो ऑब्वियसली आई वुड बी गोइंग फॉर बाइनरी. इफ सपोज आई एम सॉल्विंग मल्टी क्लास देन आई वुड बी कमिंग फॉर कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी. ठीक है. अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास एक सिंगल क्लास रहेगा जो इट विल बी एसोसिएटेड विद वन, दैट इज व्हाट, जैसे मैंने कोई एक इमेज सेंड किया और वो लायन है, तो बेसिकली फॉर कैट डॉग एंड टाइगर इट वुड बी 0. इसका जो एक्चुअल रहेगा वो तो 0 रहेगा. फॉर लायन ओनली इट वुड बी 1, क्योंकि वो लायन के लिए एसोसिएटेड है. इसका हमने फॉर्मूला देखे थे, दैट इज व्हाट, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू k. k इज व्हाट, नंबर ऑफ क्लासेस. y एक्चुअल क्रॉस log ऑफ y हेड, एक्चुअल क्रॉस log ऑफ y हेड. जैसे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगे वैसे फॉर्मूला एक्सपांड हो जाएगा. ठीक है. अगेन वी हैव सीन वन एग्जांपल, एज, सिबिल एंड क्लास. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर वी आर कंसीडरिंग एज 789 एंड सिबिल इज 500, 550 एंड 800. अप्रूव्ड, डिक्लाइन एंड इन पाइपलाइन. ठीक है. अब फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है इट इज फॉर approved. So 100, decline 010, and in pipeline 001. This is what one hot encoding of these 3 columns. This basically class column with 3 categories. ठीक है. अब softmax क्या करता है? softmax will be having 3 basically outputs. अब ये हर क्लास के लिए predicted probability देगा, A के लिए देगा, D के लिए देगा और I के लिए भी देगा. तो basically this is for A, this is for T and this is for I. This is what we are understanding. But जब मैं ये formula में put करता हूँ, we already know actual cross log of y hat होता है. एक्चुअल क्रॉस व्हाट, log of y hat. देखो हम देख रहे हैं एक्चुअल क्रॉस log of y hat. अब मेजरली इन दोनों का जो एक्चुअल है वो 0 है, तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाइड विद 0.2 और 0 मल्टीप्लाइड विद 0.5, इट विल मेक नो सेंस. तो हमको सिर्फ 1 क्रॉस 0.3, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का टर्म तो 0 हो जा रहा है, सिर्फ पहले का ही टर्म इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो वैसे ही जिसका एक्चुअल रहेगा उसी का टर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी का क्लास हमारे इंपॉर्टेंट नहीं. So all the probability summation equals to 1. Softmax की कभी भी probability का summation equals to 1 होता है. So basically we are using softmax in output level. Target variable must be converted into the one hot encoding. बिल्कुल सही. आपका target variable जो है वो one hot encoding में convert होना ही चाहिए. ठीक है. It produces an array of one hot encoding for probable matches of each category. आपकी जैसी category रहेगी वैसे probable matches वो generate करता है. But now here we are facing a problem. If suppose your target is having thousands of classes, then one hot encoding का जो column है वो thousands बन जाएंगे and it would be increasing the memory size. ठीक है. इसी से डील करने के लिए एक नया लॉस फंक्शन है, that is what sparse categorical cross entropy. अब categorical cross entropy is the same, but यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड हो गया, sparse. We already know that the sparse matrix वगैरह हमने ये पढ़े हैं NLP में, it comes और whenever we are solving a text problem जहाँ पे 0-1 का रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे स्पार्स ई बढ़ाई गई. सो स्पार्स का सबसे एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स जहाँ पे 0 और 1 है सिर्फ, तो मॉडल सिर्फ 1 का जो लोकेशन है वो याद रखता है, 0 का लोकेशन कभी भी याद नहीं रखता है. ठीक है. और इसी वजह से वो मेमोरी इफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. सो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू आर वर्किंग और डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिकली क्लासिफिकेशन क्लासेस. And it is suppose you are dealing also the one hot encoding requires a significant amount of memory. ठीक है. बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है. अब जैसे एज सिबिल और क्लास है, द सेम एग्जांपल वी आर कंटिन्यूइंग. इसके पहले हम क्या करते थे? वन हॉट एनकोडिंग करते थे 100, 010, 001. बट हम स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी में क्या करेंगे? हम सबको एक लेबल दे देंगे. सो अप्रूव्ड इज इक्वल्स टू 1, डिक्लाइन इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इन पाइपलाइन इज इक्वल टू 3. और वैसे ही जैसा हमारा सॉफ्टमैक्स से रिजल्ट आता था वैसे ही, सो 1 विल बी एसोसिएटेड विद 1 एंड सेकंड विल बी एसोसिएटेड विद द सेकंड. अब इससे हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए? रादर देन डूइंग 1000 अगर मेरे पास कैटेगरीज है और उनका वन हॉट एनकोडिंग करने से अच्छा मैंने उनको लेबल दे दिया, दैट्स इट. तो वही प्रॉब्लम नहीं है. सो आस्किंग यू वन क्वेश्चन, कैन वी डू any kind of processing on target variable? Can we do? No. No, sir. ओके. स्केलिंग कर सकते हैं टारगेट का? No. No, sir. ओके. ठीक है. सो विल ब्रेक वन मिथ. सो टारगेट की स्केलिंग कर सकते हैं बट उसको फिर से वो स्केल फैक्टर से लाना पड़ेगा. सो इफ सपोज आई एम तो बेसिकली सो लेट्स कंसिडर अगर मेरा टारगेट इज व्हाट सम 1000. ठीक है. और मैंने इसको स्केल कर दिया, लेट्स कंसिडर मैंने डिवाइड कर दिया उसको 250 से. सो बेसिकली इट इज 4. तो इसको अगर मैं इसके ऊपर मॉडल बनाता हूँ, सो राइट नाउ माय टारगेट इज 4 जो कि एक्चुअल में 1000 था.
मैंने जब मॉडल बनाया और मॉडल फिर प्रेडिक्शन देगा, तो प्रेडिक्शन देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, सो लेट्स कंसीडर द रिजल्ट इज 3 नाउ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 से, दिस विल बी 750। ठीक है, सो स्केलिंग कैन बी डन बट इन सम डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, जहाँ पे टारगेट हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, जैसे सपोज आई एम प्रेडिक्टिंग एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर गेजेस में व्हेन इट कम्स टू द मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ना, सो एज आई रिमेम्बर कि लास्ट बैच में वन स्टूडेंट वाज देयर, ही वाज वर्किंग विद सम गेजेस एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स, तो यू नो वी हैव सजेस्टेड सम दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, तो कर सकते हैं, बट स्केलिंग को फिर से वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू कैन गेट द रिजल्ट। ठीक है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, then after that we have studied about the exploding gradient. अब exploding gradient का क्या है basically? So we have studied the two problems earlier. So this is what vanishing gradient, second is what dying ReLU problem, and third one is what exploding gradient. अब ये तीन problems बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, इंटरव्यू के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है। Activation functions, some part of optimizer, and these three problems, these are the favorite questions of the interviews. ठीक है, कोई भी इंटरव्यू में बैठो इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एंड इफ सपोज यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस काइंड्स ऑफ थिंग, they think कि you would be able to work further. ठीक है, so now this is exploding gradient problem. So in case of exploding gradient, so basically gradients become larger and larger when you back propagate. ठीक है, मैं जैसे अगर बैक प्रोपगेशन पे आता हूँ तो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं मेरे, लार्जर एंड लार्जर हो जाते हैं, एंड फॉर दैट रीजन बेसिकली हम एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्सप्लोड का मतलब है कि देन वी स्टार्ट हिटिंग द एरर सरफेस। एरर सरफेस वी ऑलरेडी नो इट। ठीक है, अभी जैसे इसमें मैं अगर W11 को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मेरा y hat जो है यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू इज इंपैक्टेड बाय O31, O31 इज इंपैक्टेड बाय O21, O21 इज इंपैक्टेड बाय O11, और O11 इंपैक्टेड मेरा किससे है, W11 के साथ। इसी को मैंने चेन रूल से ले लिया था, देन 1 क्रॉस 10 क्रॉस 0.25 क्रॉस 0.25, दिस इज व्हाट वी हैव डन, बट इसका जो रिजल्ट आता है वो लार्ज आता है। अब क्या होता है देखो, सो अर्लियर अगर मैं देखता था तो वो क्या था कि 10 माइनस, जैसे 10 माइनस 20 करते तो -10 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर इफ सपोज इफ इन केस अगर ये पॉजिटिव आता है, रिजल्ट इज व्हाट पॉजिटिव, तो क्या होता था 10 प्लस 0.5 और ये 10.5 हो जाता था। देखो दोनों की वैल्यूज में डिफरेंट है, ये एक -10 है, ये एक 10 है, दैट मींस ये दोनों की स्लोप्स जो है वो डिफरेंट है। दिस इज व्हाई वी हैव स्टडीड द स्लोप कांसेप्ट करके। मैंने आपको बोला था कि ग्रेडियंट डिसेंट में दो टाइप्स की स्लोप है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अब देखो दिस -10 एंड दिस 10.5 इज वेरी डिफरेंट, ये अलग अलग स्लोप्स पे लाई करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, सो इवन इनटू द बिलियंस ऑफ इटरेशन, वंस the exploding gradient starts, even into the billions of iteration, we would be not reaching our global minima point for sure. ठीक है, फिर उसके बाद में the solution is what proper weight initialization, इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ग्रेडियंट्स गेट लार्जर एंड लार्जर इन केस ऑफ बैक प्रोपगेशन, बिल्कुल सही है। सो जैसे मैं बैक प्रोपगेट करता हूँ ग्रेडियंट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, एंड दिस द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ changes into the model we can see it. And model experiences high learning rate and exponential growth in model parameters. Exponential growth in model parameters का मतलब है कि ऑटोमेटिकली लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर एक्यूरेसी आएगी ही नहीं, कुछ अलग ही आएगी। दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग इन द बैकएंड। ठीक है, चलो देन लेटर ऑन वी हैव गॉन विद द TensorFlow। ठीक है, सो सबसे पहले इंपोर्ट TensorFlow एज टीएफ। TensorFlow का सबसे पहले वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट greater, it should be greater than 2. ठीक है, अब now TensorFlow is the library which help us to basically to build a model from scratch. ठीक है, so it is just like a environment which help us to build a deep learning models, फिर उसकी कुछ लॉस फंक्शंस है, ये सब हम स्क्रैच से वगैरह बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, TensorFlow के लिए एक सबसे अच्छा उन्होंने एक ये दिया है, what we can say the data type, that is what Tensor। ठीक है, अब NumPy and Tensor are very similar to each other, but the differences lies in the memory computation. NumPy जो है it works on CPU, but Tensor is nothing but it works on GPU as well as TPU, जहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, और इस वजह से क्या होता है हम न्यूमेरिकल से पैटर्न एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट अ गुड पैटर्न फ्रॉम इट। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमने क्या देखे, सबसे पहले स्केलर वेक्टर। सो वी वर हैविंग स्केलर वेक्टर मैट्रिक्स एज वेल एज टेंसर,
दिस इज व्हाट वी हैव सीन, ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस इज व्हाट स्केलर, एक सिंगल वैल्यू बेसिकली. फिर उसके बाद में वी हैव सीन वेक्टर, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स 2 by 2 एंड दिस इज व्हाट द टेंसर. ठीक है, टेंसर मस्ट कैन हैव n नंबर ऑफ डायमेंशन. सिर्फ हमारे लिए विजिबल दिस इज अ 3D प्लॉट, a 4 dimension we cannot even imagine also, and even for computer also he can create it but he cannot show it to us basically. Basically computer 4 dimension, 5 dimension, 6 dimension he can create it but he cannot showcase to us कि this is what it looks. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या चेक किया, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड tf डॉट कांस्टेंट, दिस इज व्हाट अ फंक्शन टू अस बेसिकली. अब म्यूटेबल इम्यूटेबल का कांसेप्ट आ गया था हमारे लिए, वो हम देखेंगे. ठीक है, सो tf डॉट कांस्टेंट. फिर उसके बाद में हमने वेक्टर बनाने की कोशिश की जिसका डायमेंशन क्या था 1, स्केलर के लिए डायमेंशन 0 है. देन वी हैव क्रिएटेड अ मैट्रिक्स जिसके लिए डायमेंशन क्या था 2. ठीक है, देन वी हैव क्रिएटेड द टेंसर, बेसिकली टेंसर, और टेंसर के लिए n डायमेंशन, इट कुड बी n डायमेंशनल इन ए डायमेंशन. जैसे यहाँ पे मैंने 3x2x3 बनाया, इसका डायमेंशन है 3. ठीक है, देन स्केलर का मतलब सिंगल नंबर, वेक्टर का मतलब नंबर ऑफ विद द डायरेक्शन, मैट्रिक्स इट्स अ 2 dimensional array, एंड टेंसर इट इज नथिंग बट अ n dimensional array, एनीथिंग इट कुड हैव इट. ठीक है, अब हमारे लिए सिर्फ ये टेंसर इंपॉर्टेंट है, नीदर द स्केलर, वेक्टर एंड मैट्रिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, नीदर वी यूज इट आल्सो ऑन डेली बेसिस, हम टेंसर यूज करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली फिर उसके अंदर हम देखें tf डॉट वेरिएबल. अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल, दिस टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, दिस कम्स विद अ बेसिकली immutable, and variable comes with a mutable which keeps on changing, and constant is like which does not change once it is defined. अब देखो, so when it comes to mutable and immutable concept, उसके बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंस रहता है. It's not about it can change, it cannot change. उसके पीछे एक मेमोरी डिफरेंस रहता है. So in case of mutable वहाँ पे डायनामिक मेमोरी एसोसिएट होती है, in case of immutable वहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एसोसिएट होती है. So let's go with an example. ये कैसा होता है बैकएंड में देखते हैं. So let's consider, मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, तो स्ट्रिंग क्या है, मेरा एक स्टैटिक मेमोरी में जाएगा, स्टैटिक मेमोरी में जाएगा, क्योंकि ये क्या है मेरा, बेसिकली दिस इज व्हाट immutable. दिस इज व्हाट immutable. देन उसके बाद में मैं एक लिस्ट देता हूँ, लिस्ट जाएगा मेरा डायनेमिक मेमोरी में, और ये क्या है, म्यूटेबल है. अभी ये दोनों के डिफरेंस क्या, अब मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सबसे पहले क्या है, स्टैटिक, एंड सेकंड इज व्हाट डायनेमिक. स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि एक बार मैंने मेमोरी एसोसिएट कर दिया, वो चेंजेस नहीं करूंगा मैं. डायनेमिक का मतलब क्या है, मेमोरी कैन बी चेंजिंग, सो बार बार चेंज होता है. सो अगर मैंने स्ट्रिंग दे दिया, सो स्ट्रिंग में एक वर्ड है, सो लेट्स कंसीडर उसमें कुछ वर्ड है राम, और राम के लिए मैंने दे दिया, सो ही एसोसिएटेड फॉर राम टू 10 KB. सो ही एसोसिएटेड फॉर राम टू 10 KB. 10 KB के लिए उसने बोल दिया कि हाँ राम वर्ड हमको स्टोर करना है फॉर 10 KB. देन उसके बाद में मैंने एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट में मैंने बोला कि हाँ मुझे उसमें राम ये पुट करना है, बट वहां पे वो बोलता है कि मुझे 15 KB लगेगा. अब देखो डिफरेंस क्या, स्टैटिक स्ट्रिंग है, ये एक स्टैटिक मेमोरी लेता है, एक लिस्ट है, ये एक डायनामिक मेमोरी लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग को पता है कि मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ. ठीक है, इस वजह से वो स्टैटिक मेमोरी लेगा, वो वहां पे सेटल हो जाएगा. बट लिस्ट को पता है ही हैज द ऑपरेशन ऑफ अपेंडिंग, रिमूविंग एंड दिस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, ये लिस्ट उसके लिए बनी है. तो वो क्या करता है, वो उसके लिए वो एक थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लेता है मेमोरी का. एंड दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक के लिए एक बार मेमोरी एसोसिएट होगी, दैट्स इट. डायनामिक के लिए वो क्या करता है, बड़ी मेमोरी ले लेता है. और इस वजह से so whenever we are creating multiple immutable things, तो हमारा बहुत ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन हो जाता है, और इसी के लिए हम गार्बेज कलेक्टर यूज करते हैं. ठीक है, so whenever you are using this dynamic memory, always use garbage collector, so that once you delete all the items, it should be in garbage. ठीक है, otherwise it will be consuming basically your memory. ठीक है, देन उसके बाद में, ठीक है, देन व्हाट वी हैव डन, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को देख लिया. सो 10 and 20 द वैल्यूज वेयर इनसाइड द वेरिएबल्स. फिर हमने क्या किया, वेरिएबल ऑफ 0 यानी 10 को हमने रिप्लेस करने की कोशिश की 100 के साथ, बट इट सेड रिसोर्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दैट मींस उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी बेसिकली नहीं हो सकता. फिर हमने बोले कि ठीक है, लेट्स गो विद द असाइन मेथड. तो हमने एक असाइन मेथड यूज किया, और उसके बाद में वो चेंज हो गया, बेसिकली वो हो गया 100 और 20, बिल्कुल सही. बट दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द basically variable.
ठीक है. So this is what we have done with the tf dot variable. But when it comes to tf dot constant, और constant को हमने चेंज करने की कोशिश की 0 को लेके 100 से. Now it says does not support, but यहाँ पे क्या है ops dot eager tensor. ठीक है, does not support item assignment, यानी ये नहीं सपोर्ट करता है. Then we have gone with the assign method, but assign method में भी we are facing the same problem. नहीं होगा, attribute assign करके ऐसा कोई भी function नहीं उसने बोल दिया. That means हम once we have defined the constant cannot be changed. आप वेरिएबल लो अगर आपको चेंज करना है तो, बट कांस्टेंट नहीं ले सकते. सो नाउ गोइंग विद अ सिंपल एग्जांपल. सो बिफोर वी हैव बिल्ड द मॉडल, हमने वेट्स और बायसेस देखे. सो व्हाट यू थिंक, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? बिल्कुल सही, वेरिएबल. सो दैट मींस आवर वेट्स एंड बायसेस विल कीप ऑन अपडेटिंग. दैट मींस हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं. Then yesterday we have seen कि हमने क्या किया, tf dot random dot generator from seed equals to 42. यानी somewhat we have tried to generate a random number. This is what we have done. ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उसका सीड हमने कॉमन रखा था 42 और इस वजह से हमको जो दोनों मैट्रिक्स मिले थे वो हमको सेम मिले थे और अब हम कंपैरिजन करने की कोशिश किया. दैट वाज ट्रू. बट मैंने फिर रैंडम नंबर को बेसिकली सीड को मैंने चेंज कर दिया, तो देन वी हैव गॉट सम डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पे हमको डिफरेंट मिल गया. बट अभी एक चीज नोटिस करो कि हर बार मुझे सीड सेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हम लोकल सीड बोलते हैं. यानी हर बार मैं रैंडम टेंसर जनरेट करता हूं तो उसके लिए मुझे सीड सेट करना पड़ रहा है. व्हाट इज 42? यहाँ पे जैसे रैंडम टेंसर बनाया मैंने, सेट किया. यहाँ पे रैंडम टेंसर 1 बनाया तो उसके लिए भी मैंने सेट किया. ठीक है, सो एवरी टाइम आई एम सेटिंग द सीड. दैट मींस इट इज अ लोकल सीड. जैसे हमने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल पढ़े थे. ठीक है, सो इट इज लाइक अ लोकल सीड. ठीक है, so now let's go now. Okay. सर Yeah, go ahead. एक क्वेश्चन है सर. अभी हम ये जो टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है ये अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं, कोलैब के ऊपर. यहाँ पे हमें ऑप्शन है जैसे ये टेंसर टीपीयू और जीपीयू. बिल्कुल सही. सेम हम इसके ऊपर जुपिटर के ऊपर कर सकते हैं विदाउट जीपीयू एंड टीपीयू. हाँ, बट वो आपका लैपटॉप का रिसोर्स यूज होगा. ओके. द डिफरेंस हियर इज व्हाट कि हम अभी फिलहाल हमारे रिसोर्स यूज नहीं कर रहे. ठीक है, लेट्स कंसीडर मैं एक मॉडल बिल्ड करता हूँ और मैं जीपीयू को 1 घंटे से यूज कर रहा हूँ. तो देयर इज नो हीटिंग इशू विल बी देयर इन माय लैपटॉप बिकॉज मैं वर्चुअल किसी और का ये यूज कर रहा हूँ. ओके, तो मेरा सिर्फ इतना क्या पूछना था सर कि विदाउट जीपीयू एंड टीपीयू कैन वी गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस एल्गोरिथम ऑन आवर सेम लैपटॉप? हाँ, कर सकते. इट वुड बी स्लो. दैट्स इट. और कुछ नहीं. इट वुड बी स्लो इनफ. स्लो रहेगा वो. दैट इज द मेजर थिंग. It's not necessary to have GPU and TPU always. No, actually sir, can we execute? No, can हम लोग टेंसर सीपीयू पर यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं अगर सिर्फ सीपीयू पर हमारे पास है, क्योंकि जैसा एनपी का जो एरे है वो सिर्फ सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, जीपीयू और टीपीयू सपोर्ट नहीं करता. तो उसमें रिवर्स में भी है इसमें टेंसर में. टेंसर सीपीयू को भी करेगा, टीपीयू और जीपीयू को भी करेगा. तीनों पे भी करता है टेंसर. बट जो उसका वर्किंग है बेसिकली उसको जिसके लिए बिल्ड किया गया है वो जीपीयू और टीपीयू के लिए बिल्ड किया गया. ओके. इट वर्क्स विद सीपीयू आल्सो. ऐसा नहीं है कि देखो राइट नाउ आई एम कनेक्टेड विद द सीपीयू इटसेल्फ. अगर मैं चेंज रन टाइम देखता हूँ आई एम कनेक्टेड विद सीपीयू इटसेल्फ. अगर मैं चाहूँ तो मैं जीपीयू या फिर मैं टीपीयू में कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, बट राइट नाउ आई एम कनेक्टेड टू सीपीयू सो वी आर वर्किंग विद इट. ऐसा नहीं, बट बेसिकली उसको जिसके लिए क्रिएट किया गया है वो एक थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग के लिए क्रिएट किया गया है. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. ओके सर, गॉट इट. थैंक यू. ठीक है, सो ले लेते हैं. सो इंपोर्ट numpy as np और लगेगा हमको टेंसर. यस सर, इंपोर्ट टेंसरफ्लो as Okay, so this is what the libraries we will be requiring. Okay. Let's shuffle the tensor. Okay, now let's shuffle the tensor. सबसे पहले not
शफल नॉट शफल, ये हम टेंसर ले लेते हैं. सो tf डॉट कांस्टेंट, सो tf डॉट व्हाट कांस्टेंट, एक हम बना देते हैं टेंसर 10,7 3,4 and again 2,5. ठीक है, so this is what the tensor we have created. ठीक है, so this is what tensor with the shape of 3 rows 2 columns, उसके में int 32 हमको दिखा रहा है and this is what it is. ठीक है, अगर मैं इसको शफल करने की कोशिश करूं, so let's try to shuffle the m dot. ठीक है, so उसको शफल अगर करना है तो tf डॉट रैंडम डॉट शफल शफल, और शफल किसको करना है, नॉट शफल. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन. देखो सबसे पहले क्या था, 10 7 3 4 2 5, इसको और एक बार रन कर देते हैं. ठीक है, सो इट इज 10 7 3 4 एंड 2 5. नाउ इट इज 10 7 2 5 3 4. दिस इज व्हाट बेसिकली अ शफल वर्क्स. ठीक है, अब देखो, सो शफल में मैं अगर सीड देना चाहता हूँ, दैट मींस इफ सपोज आई वांट टू शफल बट कुछ एक सीड के साथ, बेसिकली वो दोनों भी एक जैसे शफल हो, उसके लिए भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो सीड का मतलब हमको ऑलरेडी पता है. सो नाउ लेट्स प्रोवाइड द सीड. ठीक है, अभी अगर मैं इसी को लेता हूँ और मैं इसको शफल के साथ सीड इक्वल्स टू 42 ये देता हूँ. एट द सेम टाइम मैं और एक ये सेम लेता हूँ और इसको भी सीड इक्वल्स टू 42 देता हूँ, तो दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. करेक्ट है, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने दोनों जगह क्या लिया है, सीड इक्वल्स टू 42 और यहाँ पे सीड इक्वल्स टू 42. बट रिजल्ट देखते हैं 2 5 3 4 एंड 10 7 10 7 3 4 एंड 2 5. द रिजल्ट्स आर डिफरेंट बट सीड तो सेम है. ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने यस्टरडे वी हैव डिस्कस कि अगर सीड सेम रहती है तो रिजल्ट सेम आना चाहिए. ठीक है, बट देयर इज अ वन रूल, जैसे कि हमने बात की थी इसके पहले लोकल और ग्लोबल के बारे में. वैसे ही ये जो सीड है, दिस इज व्हाट अ लोकल सीड, इसको लोकल सीड कहते हैं. ग्लोबल सीड का मतलब क्या होता है, एक बार मैंने ग्लोबल सीड डिफाइन कर दिया, सो दैट्स इट, मैंने सेट कर दिया. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो एक बार मैंने ग्लोबल सीड वंस आई हैव डिफाइंड इट, इसका मतलब क्या है कि वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज. तो उसके लिए हमको अगर सेट सीड करना पड़ेगा ग्लोबल के लिए. ठीक है, सबसे पहले tf डॉट रैंडम डॉट सेट अंडरस्कोर सीड इक्वल्स टू 42, और उसके बाद में सो व्हाटएवर टेंसर वी विल बी रनिंग इट विल बी गिविंग एज द सेम इनपुट. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट अ लोकल सीड इज, एंड फॉर दैट रीजन सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट this is the local seed. ठीक है, this is what the local seed. अगर मैं इसको ग्लोबल बनाने की कोशिश करता हूँ, set the global random seed. ठीक है, मैं सीड सेट कर देता हूँ tf डॉट रैंडम डॉट सेट अंडरस्कोर सीड, और सीड हम सेट कर देते हैं 42. ठीक है, और उसके बाद में हम tf डॉट रैंडम डॉट शफल कर देते हैं. ठीक है, और इसको हम कितनी भी बार रन करें अभी हमको सेम रिजल्ट आएगा. ठीक है, 3 4 2 5 10 7, number of times you run, कोई प्रॉब्लम नहीं, we will be getting the same result. Now this is because of we are set here the global random seed. इसके पहले क्या हो रहा था, ये जो सीड सेट हो रही थी वो एक लोकल लेवल पे सीड सेट हो रही थी. दिस इज व्हाट इट इज सेटिंग एट व्हाट लोकल लेवल. बट जब मैंने यहाँ पे सेट किया, दिस इज सेटिंग एट अ ग्लोबल लेवल. तो अगर मैं इसके बाद में और कितने भी ऐसे शफल, कितने भी ऐसे टेंसर्स बनाऊं और उसकी अगर सीड 42 है, इट विल बी गिविंग द सेम रिजल्ट्स.
ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. Basically, we need to understand local seed, global seed. Local seed works at as a functional level, and global seed works at for the entire file. That's it. और भी कोई difference नहीं होता है. ठीक है. So if suppose now you are creating a data, ठीक है, तो वहां पे हमको global seed define करनी पड़ेंगी. If suppose you are creating just a random tensor, वहां पे आपको local seed define करनी पड़ेंगी. जैसे हम seed equals to 42 ले रहे हैं. That's it. ठीक है. चलो. Now let's move forward. अभी देखो. So there are other ways to make a tensor also. Other ways to make tensor. बहुत सारे ways है, ऐसा नहीं कि हमने कल बनाया वैसे. So tf dot ones अगर मैं करता हूँ tf dot ones और मैं लिखता हूँ शेप में डिफाइन, मुझे एक शेप चाहिए. सो बेसिकली मैं शेप लिख देता हूँ. अगर 3 रोज और 2 कॉलम्स का मुझे चाहिए तो वो भी मुझे मिल जाएगा. तो बेसिकली इट कम्स विद अ 1. करेक्ट. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3,2 यानी 3 के 3 मैट्रिक्स और 3 रोज 2 कॉलम्स, ऐसे दो. ठीक है. 1, 2 एंड 3. दिस इज व्हाट वी गॉट. अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ लिख देता हूँ, सो लेट्स कंसीडर 2, और भी बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा. सो डायमेंशन वुड बी नाउ डिफरेंट. ठीक है. सो इन दिस वे जैसे हम np.ones करते थे वैसे यहाँ पे tensorflow.ones ये हमारे पास फंक्शन है. और जैसे tensorflow.ones हमारे पास फंक्शन है वैसे tensorflow.zeros भी होगा. ऑब्वियस है. ठीक है. सो वी वुड बी हैविंग tensorflow.zeros. ठीक है. मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ 3 क्रॉस 2 बना सकता हूँ पहले, और मैं चाहूँ तो 3 क्रॉस या फिर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 भी बना सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कैन मेक. ठीक है. गॉट द पॉइंट. जीरोस एंड वंस, इसमें कोई देयर इज नथिंग चैलेंजिंग इन दैट. ठीक है. So now if suppose we are having a list of some numbers, we can convert it into tensor also. तो एक मैं numpy array ले लेता हूँ. numpy array equals to np.arange 1 से ले लेते हैं 25 तक. So we would be having nearly कितने numbers होंगे, कॉमा d type भी दे देते हैं. d type. So मैं चाहता हूँ d type मेरा np.int है. np.int मैं उसका प्रिसिजन वैल्यू दे सकता हूँ 32 भी. ठीक है. नाउ लेट्स चेक इसका रिजल्ट क्या है. numpy array कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं. तो दिस इज हाउ numpy array लुक्स. numpy array में मेरे पास 24 1 से लेकर 24 तक कितने एलिमेंट्स मेरे पास दिख रहे हैं. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द टेंसर. ठीक है. टेंसर इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ tf.constant constant. और किसका करना है कांस्टेंट? numpy array का. नाउ वी नीड टू प्रोवाइड अ शेप. सो मुझे शेप देना पड़ेगा. सो बेसिकली शेप कैसा रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका कुछ मुझे बनाना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 24 एलिमेंट्स है. ठीक है. वी हैव 24 एलिमेंट्स. तो मैं चाहूँ तो 2 क्रॉस 12 दे सकता हूँ. 12 को अगर मैं और डिवाइड करना चाहता हूँ तो 2 क्रॉस 4 क्रॉस 3 भी दे सकता हूँ, यानी 2 मैट्रिसेस और 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है. हम चाहे तो ये भी देख सकते हैं. सो लेट्स रन इट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट नाउ. 2 matrices of 4 cross 3, 4 rows 3 column. 2 matrices of 4 cross 3. This is what 4 rows and 3 columns. First matrix and second matrix. ठीक है. मैंने क्या किया, एक numpy array डिफाइन किया. numpy array से कांस्टेंट मैंने TensorFlow में बना दिया. This is what. बट देखो अभी if suppose now this is what we have created tensor. ठीक है. अब टेंसर का शेप, रैंक, एक्सिस और साइज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. शेप, रैंक, रैंक, एक्सिस और डायमेंशन. डायमेंशन एंड रैंक का नियति थी सेम. ठीक है. तो शेप, रैंक, एक्सिस एंड डायमेंशन दिस आर इंपॉर्टेंट टू अस. ठीक है. तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे. नाउ लेट्स हैव इट. सबसे पहले ले लेते हैं. So creating tensor with rank 4. ठीक है. So let's create. So rank underscore 4 underscore tensor. ठीक है. Equals to tf dot zeros. ठीक है.
TF डॉट जीरोस, और उसमें मुझे बनाना पड़ेगा सो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 ऐसे हम बना देते हैं। और अभी हम रैंक 4 टेंसर देखते हैं कैसे दिख रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स। 2 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 यानी 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, ऐसे 3 है और ऐसे कितने 2 है। दिस इज व्हाट वी हैव इट नाउ, करेक्ट। अब देखो, सो लेट्स कंसीडर रैंक 4 डॉट शेप हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो शेप क्या है इसका? सो इट इज व्हाट 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, दिस इज व्हाट द शेप। अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ, सो दैट इज व्हाट एन डायमेंशन, ठीक है। एन डायमेंशन मैंने चेक कर लिया, दिस इज व्हाट 4 डायमेंशनल बता रहा है मुझे। फिर उसके बाद में अगर मैं TF डॉट साइज चेक करना चाहता हूँ, TF डॉट व्हाट साइज, और किसकी चेक करना हो, numpy रैंक 4 टेंसर, तो वो क्या बोल रहा है मुझे, numpy विथ 120 एलिमेंट्स। अब 120 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, देखो 2 क्रॉस 3 6 6 4 सा 24 24 5 सा 120 एलिमेंट्स इन टोटल। यानी ये बोल रहा है कि ये आपके अरे बेसिकली टेंसर में कितने 120 एलिमेंट्स है, वो भी इन 32 के हैं, 4 डायमेंशन विथ यू नो शेप ऑफ 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, ठीक है। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, सो get the attributes of tensor, ठीक है। सो प्रिंट कर देते हैं डेटा टाइप ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है। वो क्या है, कॉमा रैंक 4 डॉट डी टाइप, ठीक है। इससे हमको डेटा टाइप मिल गया। डेटा टाइप इज व्हाट float 32, this is what we are getting, t type बराबर है float equals to 32, float है, ठीक है। देन उसके बाद में प्रिंट कर देते हैं, देन व्हाट वी वांट नंबर ऑफ डायमेंशन, सो नंबर ऑफ डायमेंशंस यानी बेसिकली हम उसको रैंक लिख देंगे, ठीक है, और उसका कॉमा वी डॉट एन डायमेंशन, एंड डायमेंशन। अब एन डायमेंशन वी ऑलरेडी नो, दिस इज व्हाट 4, ठीक है, 4 इज द एन डायमेंशन। फिर उसके बाद में अगेन वी वांट शेप ऑफ टेंसर, शेप ऑफ टेंसर दैट इज व्हाट डॉट शेप, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ यू नो ऑन एक्सिस अगर मैं 0 देखता हूँ तो व्हाट इज द एलिमेंट, इफ सपोज वी वांट टू चेक एलिमेंट अलोंग एक्सिस, सो प्रिंट एलिमेंट अलोंग एक्सिस। अगर मैं एक्सिस 0 की बात करता हूँ, एक्सिस 0, तो व्हाट एलिमेंट वी हैव, लेट्स सी इट, तो कंट्रोल वी डॉट उसका शेप, और शेप में 0, एक्सिस 0 की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे एलिमेंट मिलता है 2, ठीक है। इफ सपोज एक्सिस लास्ट एक्सिस की बात करता हूँ मैं, अगर मैं लास्ट एक्सिस की बात करता हूँ, लास्ट एक्सिस की, तो इट इज व्हाट -1, ठीक है। तो वो क्या है मेरा 5 है। अब नाउ लास्ट एक्सिस इज इंपॉर्टेंट, हमको लास्ट एक्सिस का काम पड़ता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इफ सपोज वी वांट टू चेक, सो व्हाट इज द नंबर, total number of elements, total number of elements present in tensor, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल हमारे पास, डॉट साइज, TF डॉट साइज ऑफ रैंक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक, अगर मुझे कोई भी टेंसर मिलता है तो मुझे ये सब चीजें उसकी पता रहनी चाहिए। अब नाउ जैसे हम numpy को एक्सेस करते थे, वैसे हम किसी को भी, जैसे फॉर टेंसर फ्लो आल्सो वी कैन एक्सेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो मैंने क्या किया, सबका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लिया, दिस इज व्हाट आई कैन एक्सेस, ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं चाहूँ तो इफ सपोज अगर और कुछ, अगर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स चाहता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ,
I can access the 2 by 2 matrix of all the matrices. ठीक है? Have you got the point, everybody, everyone? ठीक है. So now let's create a tensor with a 2 dimension that can be created. ठीक है. So मैं उसको rank 2 लिख देता हूँ, rank underscore 2 underscore 10 zor. ठीक है. मैं लिखता हूँ फिर ऊपर से tf dot constant, tf dot what constant, और फिर से वही वैल्यूज लेते थे हम 10,7 और उसके बाद में फिर से 3,4. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन. अब मैं अगर रैंक टू टेंसर देखने की कोशिश करता हूँ कैसे दिखता है, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. जैसे इधर ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है. अगर मुझे इसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करना है, दिस इज व्हाट विद द डायमेंशन 2. इफ सपोज आई वांट टू ऐड सम एक्स्ट्रा डायमेंशन टू इट, सो आई कैन ऐड. तो उसके लिए अगर मैं लिखता हूँ रैंक अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर 10 जो अब डायमेंशन ऐड कर रहे हैं हम, उसमें एलिमेंट्स नहीं ऐड कर रहे, वी आर एडिंग जस्ट अ डायमेंशन टू इट, एलिमेंट्स विल बी द सेम. अब रैंक टू टेंसर ले लेते हैं, रैंक टू टेंसर, करेक्ट. और उसके बाद में मुझे एक एक्सिस ऐड करना है. राइट नाउ उसका डायमेंशन क्या है, इट इज जस्ट 2x2 का शेप है. इसमें शेप क्या है इसका, 2x2. ठीक है. अब रैंक टू टेंसर जो है इसमें एक डायमेंशन ऐड करता हूँ, जस्ट 1 2 3. दिस इज व्हाट 3 डायमेंशन, करेक्ट. और उसके बाद में हम लिख देते हैं tf dot new axis, tf dot what new axis, और इसको रन कर देते हैं. सो नाउ डॉट n डायमेंशन लिखते हैं. सो रैंक 3 टेंसर, अभी देखो इसमें डायमेंशन 3 है, जबकि ये रैंक 2 का हमारा डायमेंशन कितना था, इट वाज 2. ठीक है. सो कॉमा, अगर मैं रैंक 2 डॉट n डायमेंशन चेक करता हूँ, रैंक 2 का डायमेंशन बोल रहा है 2 और रैंक 3 का डायमेंशन बोल रहा है 3, जबकि रैंक 3 टेंसर किससे बना था, रैंक 2 से बना था. नो लेट्स चेक इट. तो हमारे रैंक 3 में क्या है, सो हियर देखो, सो 10734 इज गेटिंग कन्वर्टेड, शेप क्या है 2x2, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2x2x1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, 2x2 कितना होता है 4, 4x1 4. और यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ 2x2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, बट नाउ द एक्स्ट्रा एक्सिस इज बीइंग एडेड टू इट. अब ये एक्स्ट्रा एक्सिस कैसे है, tf डॉट न्यू एक्सिस से. सो हियर 2 डॉट्स रिप्रेजेंट क्या है, जो ओरिजिनल एक्सिस है वो, और एक एक्सिस नया आ गया, दो एक सिंगल डॉट है, दैट मींस वन एक्सिस इज गोइंग टू बी ऐड. 2 डॉट ऐड करने से नहीं होगा. ठीक है. अगर इसी को इफ सपोज, या फिर आपको एक सिंपलेस्ट में देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड डायमेंशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि tf डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशंस, जो हमारे पास numpy में भी ये फंक्शन था. फिर उसमें रैंक अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 10 जोर. ठीक है. और आपको एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करना है, इसका मतलब एक्सिस इक्वल टू -1. दैट्स इट. -1 मीन एक एक्सिस ऐड कर दो, ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है. देखो 10734, द सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग. tf डॉट न्यू एक्सिस वर्क्स द सेम, tf डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन वर्क्स द सेम, डिफरेंस कुछ भी नहीं. ठीक है. कोई डाउट इसमें? एक्सिस tf डॉट न्यू एक्सिस एंड एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन वर्क्स द सेम. अब एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन ये हमको काम पड़ता है, ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ. सो लेट्स कंसीडर कि अगर मेरे पास एक ये है, सो दिस इज व्हाट द लिस्ट आई हैव क्रिएटेड. मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, मुझे ये मॉडल में इनपुट करना है 1, 2, 3, 4, 6, ऐसे 6 वेरिएबल्स आर देयर, आई नीड टू इनपुट टू द मॉडल. अगर मैं ऐसा इनपुट अगर मॉडल को सेंड करता हूँ, तो ऐसा क्या होगा कि बेसिकली मॉडल में इनपुट क्या जाएगा पता है, एट दिस पॉइंट मॉडल में इनपुट सिर्फ 1 जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा. मॉडल में 6 फीचर्स एज द इनपुट जाना चाहिए था, बट ओरिजिनल में इसमें सिर्फ 1 जाता है. तो अगर मैं इसको एक साथ, यानी एक एक्सिस न्यू एक्सिस ऐड कर देता हूँ, सपोज आई एम एडिंग हियर अ न्यू एक्सिस, तो उस वक्त एक साथ इतना बड़ा इनपुट चले जाता है. इन दिस वे द इनपुट गोस.
ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन आपको एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक न्यू एक्सिस ऐड करना ही पड़ता है व्हेनेवर यू आर वर्किंग। ठीक है, so axis can be added by new axis function or by expand underscore dimension as a function। ठीक है, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ टेंसर। अब देखो, सो जैसे हम वी कैन व्हाट वी कैन डू विद अ numpy और लिस्ट, द सेम कैन बी डन विद द टेंसर्स आल्सो, द सेम फंक्शनलिटी वी हैव। जैसे कि अगर मैं एक टेंसर बना लेता हूँ, सो वी आर हैविंग वन टेंसर, सो tf डॉट कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट ले लेते हैं एंड द सेम टेंसर वी आर हैविंग, ये वाला टेंसर हम ले लेते हैं। Now let's run it। ठीक है, अब देखते हैं। सो वी कैन डू द एडिशन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ, so it's suppose I need to do addition in tensor। अगर मैं चाहूँ मैं टेंसर के साथ एडिशन कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट कंट्रोल प्लस। अगर मैं सब में 10 ऐड करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज व्हाट कैन बी डन। ठीक है, तो जैसे 10 20 हो गया, 7 + 10 17, 3 + 10 13 एंड 4 + 10 = 14। एडिशन कैन बी डन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे हम एडिशन कर सकते हैं वैसे हम मल्टीप्लिकेशन या फिर और भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सो सब्सट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास टेंसर ऑलरेडी है, सो टेंसर, और उसके बाद मैं टेंसर में से सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, टेंसर -10। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन इट इज वर्किंग। 10 - 10 0, 7 - 10 -3, 3 - 10 -7 एंड 4 - 10 -6, बिल्कुल सही। अगेन इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीप्लिकेशन करूं। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चाहता हूं मैं, सो लेट्स हैव टेंसर, और उसके बाद में लेट्स टेंसर मल्टीप्लाई कर देते हम, या फिर tf डॉट मल्टीप्लाई करते, tf डॉट मल्टीप्लाई सबसे पहले टेंसर कॉमा 10। ठीक है, अब देखो tf डॉट मल्टीप्लाई टेंसर कॉमा 10, ये क्या है? 10 × 10 100, 10 × 7 70, 10 × 3 30 एंड 10 × 4 40, ऐसे काम करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। बट इन एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क्स वेरी डिफरेंटली। ठीक है, इन एक्चुअल व्हाट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, वो हमारा थोड़ा एक डिफरेंट वे में वर्क करता है। जैसे कि लेट्स क्रिएट सम टेंसर्स एंड लेट्स हैव इट। अगर इफ सपोज मैं अगर ऐसा करता हूँ कि जैसे व्हाट वी कैन डू, मैथमल इज द ऑपरेटर। सो अगर मैं सबसे पहले टेंसर देख लेता हूँ, हाउ द टेंसर इज। ठीक है, इट इज गुड, सो इट इज इन गुड शेप, दैट इज व्हाट 10 7 3 4। अगर मैं tf डॉट मैथमल इज द फंक्शन और मैं लिखता हूँ, यानी ये मुझे दो टेंसर को मल्टीप्लाई करना है। अब द सेम मैट्रिक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद सेम मैट्रिक्स, हाउ इज द रिजल्ट? ठीक है, नाउ 10 7 3 4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 10 7 3 4। अगर मैं tf डॉट मैथमल करता हूँ और टेंसर मल्टीप्लाइड विद टेंसर करता हूँ, तो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट एज 121, करेक्ट, 98 42 एंड 37, करेक्ट। इज दिस अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट? Yes, sir. No, sir. No? Is it correct or not? Not correct. Not correct. Why is it not Correct, sir. correct? ठीक है, so that means mathmal gives us the correct multiplication of matrices. Mathmal gives us what? Correct multiplication of matrices. But अगर मैं tf डॉट मल्टीप्लाई करता हूँ टेंसर और 10 से, जो कि ओरिजिनली ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 × 1 इज मल्टीप्लाइड विद 2 × 2, जबकि ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो नाउ हियर इज व्हाट हमने tf डॉट मैथमल टेंसर डॉट टेंसर किया, दैट इज व्हाट 2 × 2 मल्टीप्लाइड विद 2 × 2, 2 2 कैंसिल हो गया, फिर से रिजल्ट हमारा 2 × 2 में ही आएगा, दैट इज फाइन, बिल्कुल सही है। बट इफ सपोज इफ इन केस अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ,
इसके लिए और एक हमारे पास और एक ऑपरेटर भी है, एट द रेट ऑपरेटर। एट द रेट ऑपरेटर से भी हम ये कर सकते हैं, दिस कैन बी डन विद दैट ऑल्सो। जैसे कि इफ सपोज आई एम राइटिंग टेंसर एट द रेट टेंसर, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा 121, 98, 42 एंड 36। एट द रेट ऑपरेटर से भी हम कर सकते हैं। इट वर्क्स एज बोथ वर्क्स एज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, both works as what? Matrix multiplication. Now let's create a tensor with some different dimensions also. ठीक है, जैसे let's create tensor with what? 3 cross 2, 3 cross 2 का हम बना देते हैं। So x equals to tf dot constant, tf dot constant 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो दिस इज व्हाट x, और एक y भी ले लेते हैं, tf डॉट व्हाट कांस्टेंट, और ये भी बना लेते हैं मैट्रिक्स हमारा वैसे ही 7, 8, 9, 10, 11, 12। This is what we have done. Correct. अब x और y देख लेते हैं, how it looks like x and y. And let's see how the x and y looks. ठीक है, 3 cross 2, 3 cross 2 बिल्कुल दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बिल्कुल सही। अभी so can you tell me now, let's do matrix multiplication। फिर से हम वही matrix multiplication करते हैं, tf dot math मल करते हैं, tf dot math मल किसका करना है, x, y का। चलो ठीक है, let's do it। अब ये कुछ तो भी अलग बोल रहा है, इनकॉम्पैटिबल शेप बोल रहा है, बेसिकली मैट्रिक्स साइज इज इनकॉम्पैटिबल, और बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, देखो दिस इज व्हाट 3 क्रॉस 2 एंड दिस इज व्हाट 3 क्रॉस 2। चलो ठीक है, सो दैट मींस व्हाट 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2। अब इन दोनों में 2 और 3 कैन नॉट बी गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, ये और ये लास्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट, और इस वजह से ये बोल रहा है इनकॉम्पैटिबल शेप। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, इनकॉम्पैटिबल व्हाट शेप। अब ऐसे टाइम पे आप कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज व्हाट tf डॉट रीशेप या फिर ट्रांसपोज। ठीक है, आपको दो वे है, आइदर यू कैन डू ट्रांसपोज या फिर रीशेप। अगर मैं चाहूँ x और उसको एट द रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ y के साथ, देन लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। फिर से वही बोल रहा है कि इनकॉम्पैटिबल शेप है, दैट मीन्स ये जो है एट द रेट और मैथ मल, दिस इज अ बेसिकली अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है मल्टीप्लाई तो वो नहीं करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर वो 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, हैव यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, एवरीवन? ठीक है, सो अगर मैं tf डॉट रीशेप कर देता हूँ, tf डॉट रीशेप कर देता हूँ, y को रीशेप करता हूँ और शेप में देता हूँ शेप इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3। दैट मीन्स अभी क्या होगा, मेरा x का शेप क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स। करेक्ट, दिस इज व्हाट द शेप ऑफ x। अभी y का शेप क्या हो गया, 2 रोज 3 कॉलम्स। अब 2 विल गेट कैंसल एंड रिजल्ट विल बी व्हाट 3 क्रॉस 3। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो इसी को हम पहले रन कर देते हैं, ये हमको दिखता कैसे, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12। चलो इसी को हम रन करके देखते हैं। अगर x एट द रेट हम करते हैं विथ रीशेप्ड ऑफ y, तो देखो अभी मुझे रिजल्ट मिल गया 3 क्रॉस 2, दैट इज व्हाट 3 रोज 2, 3 क्रॉस 3, दैट इज व्हाट 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 क्रॉस 2 एंड सेकंड वाज 2 क्रॉस 3, दैट मींस दिस 2 गेट कैंसल और ये बन जाएगा 3 क्रॉस 3। दिस इज व्हाट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लुक्स लाइक। करेक्ट, नाउ दिस वाज द फर्स्ट वे कि मैं क्या कर सकता हूँ, y को रीशेप कर सकता हूँ। दिस वाज द फर्स्ट वे एंड द सेकंड वे क्या है, हम ट्रांसपोज कर सकते थे x का। अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ tf डॉट ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ऑफ व्हाट x। अगर मैं TF डॉट ट्रांसपोज करता हूं तो दिस इज व्हाट 1 3 5 2 4 6 1 3 5 एंड 2 4 6, यानी ये क्या हो गया मेरा 2 rows 3 columns। दिस इज व्हाट नाउ 2 rows and 3 columns। और मेरा ओरिजिनल y जो है दैट वाज व्हाट 3 rows and 2 columns। ओरिजिनल y, अगर सिर्फ y देखने की कोशिश करता हूं तो दिस वाज ओरिजिनल वन। ये क्या है मेरा 3 rows and 2 columns। अगर मैं 2 rows 3 columns और 3 rows 2 columns को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो 3 3 विल बी गेटिंग रिमूव्ड एंड 2 क्रॉस 2 विल बी द मैट्रिक्स जनरेटेड। वही करते हैं। सो लेट्स हैव अ ट्रांसपोज ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ y। अभी देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है। 89 98 116 एंड 128। 89 96 116 and 128। So what do you think? Which one is the correct one? Reshape या फिर transpose? Either piece correct, but just it should follow the multiplication property of matrix. Again. चलो ठीक है। So we don't have to worry in this kind of scenarios। ऐसे हमारे साथ कभी होगा ही नहीं। That's the first point। ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक हमारे लिए सी है @ या फिर मैथमल। बट ये वाला जो कंसेप्ट है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे जो मैट्रिसेस बनते हैं वो वैसे के वैसे ही बनेंगे। 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 ऐसे ही मैट्रिक्स बनेंगे हमारे साथ। ठीक है। सो दिस इज व्हाट जस्ट अ फन फॉर यू कि हम अगर दोनों वे से निकालते हैं तो हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। ठीक है। सो this is what we were trying to do this kind of thing। but actual में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको पता है कि दो मैट्रिक्स अगर साइज हमारे डिफरेंट है, जैसे 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अदरवाइज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वुड नॉट टेक प्लेस। ठीक है। सो जैसे अभी हमने x ले लिया। सो अगर मैं x को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, x डिवाइडेड बाय, let's see, are we getting it? ठीक है, we are getting the result with dividation also। ठीक है, that means multiplication, divide, subtraction and addition, this all works with tensor directly in a elemental way। in a elemental way का मतलब क्यों? क्योंकि list is not the elemental। अगर मैं लिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, सो लिस्ट 1 अगर मैं लेता हूँ तो 1, 2, 3, समथिंग 4, 5 लाइक दिस। और उसके बाद में अगर मैं लिस्ट 1 प्लस अगर मैं 10 करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। बट अगर ये एक एरे है, इफ सपोज इट इज एन एरे और इट इज एन टेंसर, अगर मैं x प्लस 10 करने की कोशिश करता हूँ तो इट विल वर्क बिकॉज इट वर्क्स इन एलिमेंटल वे, बट लिस्ट डज नॉट वर्क इन एलिमेंटल वे। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, चलो good। So today we have seen the operators। ठीक है, सबसे पहले सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट द लोकल सीड, सेकंड इज व्हाट द ग्लोबल सीड। लोकल सीड हम फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। ग्लोबल सीड, वन सीड इज डिफाइंड फॉर द एंटायर फाइल, इट वुड बी सेम, इट विल बी गिविंग द सेम रिजल्ट्स बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखे कि अदर वेज टू मेक टेंसर्स, जैसे 1 से या फिर 0 से, tf.1 tf.0, दिस इज व्हाट वी कैन मेक द टेंसर्स। ठीक है, इनके डायमेंशन अलग है, जैसे 3 क्रॉस 2 इज अ मैट्रिक्स, बट ऐसे मैंने 2 मैट्रिक्स बनाया और चाहूँ तो मैं उसके और भी डायमेंशन रख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्रिएटिंग अ टेंसर विद रैंक 4 बना सकते हैं। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड tf.0। फिर उसके बाद में वी हैव सीन रैंक 4 डी टाइप हमने देखे, उसका डायमेंशन क्या है, उसका शेप क्या है, शेप में का फर्स्ट एलिमेंट या फिर लास्ट एलिमेंट, और उसकी साइज क्या है। ठीक है, एक टेंसर में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाट द साइज टेल्स अस।
ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखिए क्रिएटिंग अ टेंसर विद 2 डायमेंशन एंड वी हैव कन्वर्टेड सेकंड डायमेंशन 2 डायमेंशन टेंसर इनटू द 3 डायमेंशन बाय डूइंग व्हाट tf dot new axis, we have added one axis new axis to it. ठीक है, चाहे तो हम न्यू एक्सिस से कर सकते हैं या फिर वी कैन डू इट विद tf dot expand dimensions also. तो मैं आई ऑलरेडी यूज tf dot expand dimension, इट इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ से ये डॉट्स छूट जाते हैं, इन शॉर्ट you missed out many times. ठीक है, then manipulation of a tensor, in case of tensor we can do addition, multiplication, division and subtraction also. ठीक है, but in case of multiplication be cautious, whenever we are multiplying दोनों भी मैट्रिक्स should be multiplied with each other, otherwise it will not make any sense. ठीक है, तो हम @ या फिर मैथमल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. ठीक है, @ और मैथमल ऑपरेटर. ठीक है, tf dot multiply will not work. tf dot multiply is not the real matrix. tf dot multiply is not the real matrix multiplication. ठीक है, this is what tf dot multiply. देखो 10 cross 10 is what 100, 7 cross 7 is 49, 3 cross 3 is 9 and 4 cross 4 is what 16. ठीक है, now this is मैं tensor dot tensor करता हूँ, तो this is not the real matrix multiplication, but @ or mathmal is the real matrix multiplication. Whenever we are using matrix multiplication, then use @ or mathmal as the operator. ठीक है, enough for today. Anybody is having any questions in your? सर जब हम ये डायमेंशन ऐड करते हैं, Uh-huh. सपोज वी हैव इनिशियल डायमेंशन एज 3/2. 3/2 of what matrix? हाँ, मैट्रिक्स. ठीक है, तो डायमेंशन ऐड करते वक्त हाउ इट विल गेट मैनेज. जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया उसमें 2/2 था, तो नया जो डायमेंशन ऐड हो गया वो बन गया आपका 2,2,1. बिल्कुल सर. सो 3/2 हाउ इट विल वर्क. बिल्कुल करके देख सकते हैं, उसमें क्या कैन डू इट. ऑल दिस थिंग्स आर वेयर इट इज. और व्हाट हम सो ऐसे करते हैं, हम tf डॉट वंस ले लेते हैं और उसके अंदर शेप डिफाइन करते हैं. तो लेट्स हैव सम 2,3 फर्स्ट. ठीक है, और हम ले लेते हैं 2,3. दिस इज व्हाट वी हैव डन. ठीक है, और इसको हम नेम दे देते हैं सो वंस. और इसको हम एक्सपांड डायमेंशन कर देते हैं, एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं. अपना वंस का डायमेंशन पहले ले लेते हैं हम. सो वंस डॉट एंड डायमेंशन कॉमा वंस डॉट शेप भी ले लेते हैं. ठीक है, सो 3 डायमेंशन और उसका शेप क्या है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3. सो tf डॉट एक्सपांड डायमेंशन और यहाँ पे 1 से ले लेते हैं और एक्सिस हमने एक ऐड कर दिया इसमें. ठीक है, ये हम b ले लेते हैं. ठीक है, अभी हम b डॉट शेप, b डॉट एंड डायमेंशन कॉमा b डॉट शेप ले लेते हैं. डायमेंशन कॉमा b डॉट शेप. Now you can see adding one extra dimension 2 cross 2 cross 3, one extra, and this becomes 4 dimension. ओके, कैन वी सी इट सर बी. हाँ बिल्कुल, b देख सकते हैं हम, क्यों नहीं देख सकते. This is how it looks now. मींस सर व्हेन वी आर एडिंग अ डायमेंशन बेसिकली कॉलमनर मैट्रिक्स टाइप बन जाता है हमारा. करेक्ट, ओके. लास्ट एक डायमेंशन ऐड हो जाता है, बाकी का मैट्रिक्स आगे चल जाता है. एक और सर, जब हमने शफलिंग किया था सर, बिल्कुल, पर तो शफलिंग सिर्फ रो का ही शफलिंग होता है क्या? कैन वी हैव अ शफलिंग इन कॉलम्स, वैल्यूज ऑफ कॉलम्स? होता है, आपको एक्सिस मेंशन करना पड़ेगा, होता है उसमें भी. ठीक है, ठीक. Just add axis parameter to it. देखो, if suppose anything you are missed out, so go to the TensorFlow site. TensorFlow में हम अगर मैं tf.1 अगर देखना चाहता हूँ, tf.1 में चले जाएंगे और उसके बाद अभी हमने tf.1 से कैसे मल्टीपल हमारे पास फंक्शंस है. ओके, इतनी फंक्शंस नहीं है. ठीक है, बट एज सच
देखो until and unless हम बहुत सी चीजें करते नहीं है ना, in short Try from नहीं- scratch, हाँ try it out and अगर आपको कुछ चीजें ऐसे करना है तो ही रिक्वायर्ड है, अदरवाइज बैकएंड में मॉडल बनाता है, ठीक है, बट डू नॉट बी एंटायरली डिपेंडेंट ऑन मॉडल, वो बनाता है करके हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, आप ट्राई आउट करो, इट विल बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर फॉर श्योर, ठीक है। शेप है, डी टाइप है, नेम है और लेआउट है, दिस आर द आर्ग्यूमेंट्स। हम शेप यूज करते हैं, डी टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेम एंड लेआउट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ऑल पैरामीटर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, anybody with any doubts again? Okay, then. ठीक है, चलो, let's end the session for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.